چینل وقت کی آواز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ناظرین اکرام، آدھونی شہر میں خدمت سوسائٹی کے نام سے ایک سوسائٹی کھولی جا رہی ہے جو ایک بینک کی طرح ہوگی، مگر بینک نہیں کہا جا سکتا اس کو۔ وہ بینک کی خدمات جو ہے انجام دینے کے لیے اس کی ایک سوسائٹی بنائی گئی ہے جو عوام کی خدمت کے لیے ہوگی۔ اس سوسائٹی کو قائم کرنے میں مہاتی اسحاق نظامی صاحب نے شروعات سے جدوجہد کی ہے، لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، اور یہ ہم ان کی زبانی جو ہے تفصیل اس سے متعلق فراہم کریں گے۔ صاحب آپ جو ہے خدمت سوسائٹی کو جو ہے آگے بڑھانے کے لیے کس طرح سے خدمات انجام دی رہی ہیں، یہ سوسائٹی کب اوپن ہونے والی ہے، اس سے متعلق ذرا تفصیلی معلومات عوام تک پہنچائیں تو ہمارے چینل کے ذریعے عوام تک آپ کی آواز پہنچے گی انشاءاللہ۔ شہر آدھونی میں اس طریقے کی ایک بینک جو چھوٹے کاروباروں کی مدد کر سکے، یہ ایک دیرینہ تمنا تھی، اور یہ جو ہے سالوں سے جو ہے ہمارے ذہن میں تحریک تھی کہ جو ہے ہم کوئی ایک ایسا ادارہ قائم کریں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہ موقع ہمیں فراہم کیا، اور جو ہے ہم بہت جلد عنقریب ایک ایسی برانچ جس کے جو ہے 42 برانچز پھیلے ہوئے ہیں، یہ حیدرآباد میں ہے۔ چند مخلص مسلمانوں نے جو ہے اس کی بنیاد 2012 میں ڈالی، اور جو ہے وہ بینک ترقی کرتے ہوئے آج 3 اسٹیٹوں میں، ریاست کرناٹکا، آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں جو ہے اس کے تقریباً 42 برانچز ہیں جو کامیابی سے جو ہے کام کر رہے ہیں۔ تو اسی کی ایک شاخ آدھونی میں قائم کی جائے گی، اور اس کے ساتھ آپ کے شہر میں جو ہے غریب چھوٹے کاروباریوں کے لیے جو ہے سہولت فراہم کرنے کے لیے جو ہے ہم یہ قائم کر رہے ہیں۔ بینک کس طرح سے چلے گی، اب کب اوپن ہوگی آپ کی بینک؟ جی، تو اس طریقے سے جو ہے یہ حیدرآباد والوں کا ہیڈ آفس سے تو پرموشن مل چکا ہے۔ اب جو ہے جو فنڈامنٹل کام ہے، اور جو ہے ہم نے جو ہے وہ جو چندرسا روزے کے سامنے جو شریف کمپلیکس ہے اس کے اوپر جو ہے حال ہم نے جو ہے لیا ہے بینک کے لیے، اور اگریمنٹ بھی سائن ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد اس کے پروسیس جو ہے شروع ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے شہر میں پہلے جو ہے اکاؤنٹس کھولے جائیں گے۔ اکاؤنٹ اس طریقے سے کھولے جائیں گے کہ جو ہے آپ کو آسان طریقہ ہے، آپ کی اپنی بچت کی رقم جو ہے سیونگز بینک میں جو ہے آپ کو اکاؤنٹ کھولنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے لیے آپ جتنی رقم چاہے جمع کر سکتے ہیں۔ 50 روپے سے آپ اسٹارٹ کر کے آپ جتنا چاہے جمع کر سکتے ہیں، اور اس رقم کو لینے کے لیے آپ کبھی بھی لے سکتے ہیں۔ وہ اس طریقے سے کہ جو ہے جو آپ کے پاس ہمارے کارندے آئیں گے، جو ہمارا جو ہے کیشیئر جو ڈیلی آپ کے پاس پگمی لیتا ہے، وہ جب آئیں گا تو جو ہے اس سے جو ہے 5000 کی رقم کے اندر اگر آپ کو رقم ودڈرال کرنی ہے تو اسی وقت آپ لے سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ کی رقم زیادہ ہے اور اس سے زیادہ آپ کو ڈرا کرنا ہے تو جو ہے آپ کو بینک میں آنا پڑے گا۔ یہ سیونگس ہے۔ یہ اگر آپ اس سیونگس ہو گیا، ہم 100 ڈیز جو ہے آپ کا ٹرن اوور دیکھیں گے، اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں، آپ کو لون کی ضرورت ہے، تو پھر جو ہے اس کے لیے ہم جو ہے آپ کا 100 ڈیز کا ٹرن اوور دیکھنے کے بعد، آپ کے کاروبار کو دیکھنے کے بعد، آپ کی ضرورت کو دیکھنے کے بعد یہ طے کریں گے کہ جو ہے آپ کو جو ہے لون کس طریقے سے کتنا دے سکتے ہیں۔ تو یہ طریقے سے یہ لون بھی آپ کو جو ہے 100 دنوں میں جو ہے واپس کرنا ہے۔ جیسے کہ جو ہے مثال کے طور پر اگر ہم آپ کو 10,000 روپے لون دیتے ہیں تو اس پر سروس چارجز کے طور پر 400 روپے ہم چارج کریں گے، اور پھر آپ کو جو ہے اس طریقے سے 10,400 روپے ہم 100 دن میں جو ہے آپ کو واپس کر دیں گے۔ اس طریقے سے آپ جو ہے پھر لے سکتے ہیں، پھر دے سکتے ہیں، اور آپ کے کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہے یہ بینک بہت مددگار آپ کی ثابت ہو سکتی ہے، بشرطے کہ جو ہے اس بینک کو اپنا سمجھ کر اسے جو ہے لین دین صحیح رکھتے ہوئے اس کے ساتھ تعاون کرے۔ کب اوپن ہونے والی ہے، کب اس کا افتتاح ہوگا؟ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ جو ہے پرمیشن تو ہو چکا ہے،
इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि जो है नवंबर के फर्स्ट तक स्टार्ट करने का रहा था, लेकिन जो है नवंबर 15 तक इंशाल्लाह जो है हम इसे शुरू करने की कोशिश करेंगे। जनाब हलीम सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। हम हलीम सिद्दीकी साहब से उस सोसाइटी के बारे में जानकारी हासिल करने की गर्ज से एक गुफ्तगू कर रहे हैं, लिहाजा हमारी ये गुफ्तगू आवाम के फायदे के लिए साबित होगी। आवाम की जहन में आने वाले सवालात को हमने उनके जरिए हल करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा मैं अब हलीम सिद्दीकी साहब से ये सवाल करता हूं। हलीम सिद्दीकी साहब, आपका हमारे चैनल में इस्तकबाल है। शुक्रिया। हमारे चैनल वक्त की आवाज़ आपकी आवाज़ को जो है आवाम तक पहुंचाएगी। खिदमत बैंक, जिसे सोसाइटी के नाम से आप नाम दे रहे हैं, बैंक तो नहीं, लोगों को समझ में आने के लिए बैंक के तौर पर हम कह रहे हैं। तो ये बैंक सिर्फ आधुनिक शहर की हद तक है या फिर दूसरे खरियों के लिए भी इस्तेमाल होगी? तो ये आप डायरेक्ट बैंक आप आधुनिक शहर वाले लोग मिलकर खोल रहे हैं या फिर किसी दूसरी शाख से जो है आप शाख लाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल खिदमत सोसाइटी के नाम से बिलासूदी सोसाइटी जो कायम की जा रही है, ये न तो किसी की जहन की पैदाइश है, न ही सिर्फ आदोनी में है। ये हैदराबाद में कायम की गई है। 12 साल से ये कामयाबी के साथ चल रही है। इसके 43 ब्रांचेस चल रहे हैं जो पूरे के पूरे नफा बख्श हैं। बिला सूदी कारोबार के लिए जो छोटे कारोबारी हैं, उनको उनकी हिम्मत अफजाई के लिए, उनको जो है सहूलत फराहम करने के लिए ये कायम की गई है। ये एक ब्रांच है, ये इसकी जो है रजिस्ट्रेशन है, ये लीगल तरीके से कायम की गई है। इसमें किसी किस्म की कोई भी शक व शुबा नहीं है। ये इंटरेस्ट फ्री बैंक आप बता रहे हैं, तो ये इंटरेस्ट फ्री बैंक क्या है? दरअसल ये इस्लामी नुक्ते नज़र से जिस तरह के इस्लाम में सूद को हराम करार किया गया है, उसी को मद्देनजर रखते हुए इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया गया। इसमें रोजाना की बुनियाद पर जो भी लोग अपना बचत करना चाहते हैं, उन लोगों के जरिए उन्हीं के जरिए फंड्स रेज किए जाते हैं। और इसका सिस्टम इस तरह है कि जो भी इसमें अकाउंट खोलेगा 100 दिन तक मुसलसिल वो अपनी बचत करेगा, जिससे एक सिविल स्कोर तैयार होगा कि कौन किस तरह से रेगुलर है, इरेगुलर है, कितना दे सकता है, उसका पता चलेगा। 100 दिन के बाद 100 वर्किंग डेज, इसके बाद उसको उसकी जमा की गई रकम और उसके साथ खर्च भी दिया जाएगा। अगर एक शख्स 100 रुपये रोजाना की बुनियाद पर जमा करता है, तो 3 महीनों के बाद उसकी रकम के अलावा 10,000 का खर्च उसको दिया जाएगा, जो छोटे व्यापारियों के लिए मुनाफा बख्श है। क्या हम इसको सोसाइटी ही कहें या फिर बैंक भी कह सकते हैं? ये दरअसल कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्टर्ड की हुई बॉडी है। इसको बैंक समझने के लिए कहा जा रहा है, ये दरअसल बैंक नहीं है, क्योंकि आरबीआई के डायरेक्शन के मुताबिक कोई भी बैंक बिला सूद के रजिस्टर्ड नहीं की जा सकती। इसलिए हम इसमें लफ्ज सूद इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये एक सोसाइटी, खालिस सोसाइटी है, लेकिन लोगों को समझने के लिए जहां पर पैसे जमा किए जाते हैं, खर्च दिए जाते हैं, इसको बैंक का नाम दिया गया है, वरना एक खालिस सोसाइटी है। अच्छा, ये जो आप कर्ज देते हैं, लोगों को कर्ज देने के लिए जो बात कह रहे हैं, उसके लिए आपके पास रकम कहाँ से आएगी? हमारी सोसाइटी का ये उसूल है कि सबसे पहले हम अकाउंट्स खुलवाएंगे और 100 डेज तक, 100 वर्किंग डेज में जो है उनके पास से डिपॉजिट्स लेंगे। 100 दिन मुकम्मल होने के बाद जो रकम हमें 100 दिन तक जो अकाउंट्स में जमा की गई है, उससे जो है कर्ज देने शुरू करेंगे, जो जमा कर रहे हैं, और उन्हीं लोगों को दिया जाएगा। न तो पैसा कहीं ऊपर से आएगा, न पैसा यहाँ से किसी को दिया जाएगा। आप रकम यहाँ से देंगे, कम से कम या ज्यादा से ज्यादा कितनी रकम देंगे
वो रकम देने के लिए आप क्या शराइत रखें हैं? पहली बात तो ये छोटे ताजिरों के लिए है, तो अगर कोई शख्स रोजाना 100 रुपये जमा कर सकता है तो उसे कम से कम 10,000 रुपये, उसी मुनासिबत से अगर वो 500 रुपये या 1000 रुपये तक अगर रोजाना की बुनियाद पर जमा कर सकता है तो उसे जो है 50,000 और 1 लाख तक की रकम दी जा सकती इससे पहले इससे मुताल्लिक कुछ मीटिंग्स वगैरह हुई या फिर आपने आवाम को किस तरह इसका पैगाम दिया है? है। इसको लॉन्च करने से पहले हमने मोअज़्ज़िज़ शहर, काज़ी शहर, खतीब शहर और हमारे मुफ्तियान शहर, उलमा, कायदीन, सियासी लीडरान, खलीफा हजरत, तमाम लोगों से हमने इंफरादी तौर पर मुलाकात की, उनको समझाया, उन्होंने इसके लिए हामी भरी और इसको समझकर उसके बाद ही हम लोगों ने अवाम में जाने का सोचा और अवाम में पहुंच पाए। अच्छा, ये सोसाइटी की शुरुआत आप किस तरह करेंगे? इस सोसाइटी का तरीक़ाकार ये है कि कायम करने के लिए हम अतियात हासिल करके डोनेशंस के जरिए इस बैंक को कायम करेंगे, जिसके लिए तकरीबन 5 लाख के अखराजात हैं। यह हमारे अहले खैर हजरात चंद लोगों ने वादा किया है कि वो उसके कुछ चीज़ें वो अपनी तरफ से देंगे और जो छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो पैसे जो लोगों ने भी अतिया दिया है उसके जरिए मुकम्मल की जाएंगे। इसके अखराजात 5 लाख तक हैं। मुकम्मल होने पर जल्द से जल्द शुरू कर दी जाए। अच्छा, तो ये जो सोसाइटी के अराकीन हैं वो खिदमत मुफ्त में अंजाम देंगे या फिर उनके लिए कुछ मुआवजा वगैरह रखा गया है? इस सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा है, इसमें जो है एक BMC बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट कमेटी एक होगी जिसमें 7 लोग होंगे। इन लोगों की मुकम्मल जिम्मेदारी होगी कि ये पूरे बैंक के कारोबार को मुकम्मल तौर पर इसकी निगरानी करें। यही जो है जिम्मेदार हैं। इसके अलावा बैंक के लिए एक मैनेजर, एक कैशियर और फील्ड वर्कर्स, हर 200 अकाउंट्स के लिए एक फील्ड वर्कर को मुकर्रर किया जाएगा। इब्तिदा में कम होंगे, जैसे जैसे अकाउंट्स बढ़ेंगे फील्ड वर्कर्स को भी बढ़ाया जाएगा। क्या ये सोसाइटी जो चलाई जा रही है क्या सिर्फ मुसलमानों के फायदे के लिए होगी या फिर दीगर मजहब वाले लोगों के लिए भी फायदा पहुंचाएगी? दीन इस्लाम जो है तमाम कौमों को दावत देता है, तो हम कभी भी ये महदूद अपने कौम के लिए नहीं, अगर ये नफा बख्श है समाज के लिए तो न सिर्फ मुसलमान बस के कोई भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला शख्स इसमें जो है शामिल हो सकता है, कोई भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकता है। इसमें अकाउंट किस तरह खोला जाएगा, किस तरह इसकी रकम क्या होगी अकाउंट खोलने के लिए? इसमें जो है 650 रुपये अकाउंट खोलने के लिए दरकार हैं, जिसमें से 300 रुपयों के जो है शेयर्स माने जाएंगे। 100 रुपीज़ 150 रुपीज़ जो है इसकी फीस है, जिसमें सालाना फीस और अकाउंट ओपनिंग फीस है, और जो बकिया रकम जो है आपके डिपॉजिट के तौर पर आपके अकाउंट में रखी जाएगी। अच्छा, इस इदारे के औकात क्या होंगे? ये कब से कब तक खुला रहेगा? ये अवाम की सहूलत के लिए है। बैंक तो दिन के औकात में होंगी, लेकिन खुसूसन जो लोग व्यापारी और जो ताजिर हैं वो शाम के औकात में, हमारे जो भी कलेक्टर्स हैं वो पैसे शाम में 4 बजे से 8 बजे तक अगर कलेक्शन करेंगे तो रात में 9 बजे तक वो पूरे डिपॉजिट कर देंगे। डिपॉजिट क्लोज करने के बाद ही बैंक क्लोज होगी। अगर कोई फर्द आपकी बैंक में, आपकी सोसाइटी में अगर पैसे जमा कर रहा है तो उसके लिए आप आपकी सोसाइटी क्या फायदा पहुंचाएगी? हमारे पास क्योंकि ये बिलासूदी सोसाइटी है, तो जो भी अकाउंट होल्डर इसमें पैसा जमा करना चाहता है उसे सूद तो नहीं दिया जाएगा। अलबत्ता ये सहूलत दी जाएगी कि वो हमारे जो कारिंदे हैं उनके दुकान से पैसे वसूल करेंगे, जरूरत पड़ने पर उनके दुकान पर पैसे पहुंचाएंगे, और जब चाहे आप जो है ड्रॉ कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको जो है सिक्योरिटी दी जाएगी। हमारी बैंक में जो है हिफाजत के साथ रखा जाएगा, आपके लिए सिक्योरिटी है, खिदमात हैं, आप जो है यहाँ पर जमा करवा सकते हैं अपनी जगह से और खुद हासिल भी कर सकते हैं अपने पास। अच्छा, तो ये सोसाइटी की तरफ से जो
खिदमत अंजाम दी जा रही हैं, क्या वो शहर के हद तक महदूद होंगी या फिर अतराफ के खरियाओं को भी जो है आप इसकी मदद करेंगे? क्योंकि ये इमदाद बाहमी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये शहर के हद तक ही महदूद होगी, क्योंकि हम दूसरे हमारे कारिंदे उन तक नहीं पहुंच पा सकते जो दूसरी जगहों पर है। इसलिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि ये शहर आदोनी तक हो। अगर कोई ऐसा स्पेशल केस है जो महसूस कर रहे हैं कि वो सूदी बैंक में रखना नहीं चाहते या हमारी बैंक में ही अकाउंट करना चाहते हैं, तो फिर वो अपनी मर्जी से यहाँ पर अकाउंट खुला सकते हैं। उनके लिए ममानियत तो नहीं है, लेकिन हमारा पूरा कंसंट्रेशन हमारे शहर के लोगों को पहले फायदा पहुंचाना। अच्छा, तो ये किस किस किस्म के लोन जो है आप आवाम को मुहैया करेंगे? इसके लिए जमानत वगैरह क्या देनी पड़ेगी, किस तरह से तफसील? हमारे इस सोसाइटी में 4 किस्म के लोन्स या कर्जे दिए जाएंगे। सबसे पहले जो है तिजारती लोन है, जो रोजाना की बुनियाद पर जमा करने वाले अशखास को दिए जाएंगे। दूसरा जो है कंज्यूमर लोन्स हैं, जो सैलरीड पर्सन है, वो कोई जो चीजें कंप्यूटर, फ्रिज, टीवी वगैरह ऐसा कुछ खरीदना चाहते हैं तो उनको कंज्यूमर लोन्स दिए जाएंगे। एजुकेशन लोन्स भी है, चंद लोग जो है पढ़ने के लिए उनको फौरी तौर पर अगर दस्तयाब नहीं है तो उनको एजुकेशन लोन भी दिया जाएगा। इमरजेंसी लोन भी है, सेहत के और दूसरे मामलात में अगर कोई शख्स है तो उसके लिए ये लोन भी दिया जाएगा। लेकिन फिल वक्त शुरुआत में हम सिर्फ तिजारती लोन से ही इसका आगाज कर रहे हैं। एक बार हम जो है पूरे चलने के बाद मुकम्मल 1 साल के बाद हम दूसरे लोन्स को भी इसमें शुरू करेंगे। इब्तिदा में तो एक ही किस्म के लोन्स दिए जाएंगे। इसके लिए सिर्फ 2 ही श्योरिटीज हैं जिसको हम लोन देंगे। एक तो फॉर्म में एक प्रॉमिसरी नोट होगा, उस पर सिग्नेचर होगा, और एक रिकग्नाइज्ड बैंक का ब्लैंक चेक लेंगे। ये 2 जो है श्योरिटीज की बुनियाद पर दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हलीम साहब आपका। बहुत बहुत आपने भी जो है की, और अगर कुछ मालूमात हासिल हो तो फिर दोबारा इंशाल्लाह जब आपकी बैंक इफ्तिताह होगी और तफसीली मालूमात जो है आवाम को पहुंचेगी, इसी के साथ जो है हम लोग इस इंटरव्यू को यहाँ पर खत्म करते हैं।